Good afternoon, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, I wish you all the best, and I think I should just inform other class in charges and other students also. Good afternoon, everyone, once again. I think you can start, Mohit. Let the other people join as and when they come. Okay, ma'am. Thank you. When we started, it seems hard to go. When we started, it seems hard to go. Now we are feeling blessed. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mohit from BTech CSC 5th semester, Gulzar Group of Institute, and Chief Executive of Engineering Society Circle and Arcane Innovation. I am very happy to see you guys here celebrating this auspicious day, that is World Student Day, with us. Actually, it is on 15th October, on the birth remark of Dr. APJ Abdul Kalam sir, and we are observing it from today. And I would like to show my gratitude to our HOD sir, our faculty members, those are present here. Thank you so much. Also, I would like to introduce today's panelist for this event. I request Amit Kumar, Amit Gupta, Jagrup Singh to introduce themselves in the sequence. Amit, mic is yours. Okay. Thank you, Mohit. Uh, Good afternoon, ma'am, and all members. I'm Amit Kumar from I'm Amit Kumar of BTech CSC from Guldar Group of Institutes, 5th semester. I am Chief Executive of Arcane Innovation. Thank you. Good morning, everyone. My name is Amit Gupta. I'm pursuing my computer science from Guldar Group of Institutes, and being a part of Arcan Innovation, we are going to discuss about competitive programming. So let's see what happened. We will discuss. Thank you. So, good afternoon, all. My name is Jagrup Singh. I am a student of BTech CSC at Gulzar Group of Institute. So, I am an executive at Arcane Innovation Hub. So, that's all. Thank you. Thank you, Jagru. In today's session, we're gonna discuss about competitive programming and how can we get started into it. For that, we are taking CodeCef as our coding partner. So let's get started. Amit Gupta, mic is yours. Yeah, good morning. I'm going to present my screen. Wait for a second. So we are here to discuss about competitive programming. As Mohit said that we are going to discuss lots of things about competitive programming. So we are here to start with it. So firstly, we will discuss about competitive programming, like introduce means competitive programming. So introduction to competitive programming and getting started with CodeShape. So we are just partner of CodeShape. Now we are starting with competitive programming. What is it and how we should work with it? So let's begin. Firstly, we will discuss about what is programming. When we entered in college, we know that C, C++, Python, these are programming, but not. These are only just a language that we implement our instructions to computer, like what we have to perform. So these are just a language that we perform our task through it. So these are not a programming, competitive programming, whatever, but these are just a language. Like if we start with doing coding, so firstly we will start with in our college C, C++, and then after Java or Python. So basically we are not aware that much of competitive programming and data structure and algorithm that much, but there is a syllabus in our also in our syllabus like data structure and design and analysis of algorithms. So these are also a part of competitive programming. Without data structure and analysis of algorithm, we cannot say that we are done with it. So these are not. So we will discuss what is competitive programming. So see, for programming, generally programming is instruction to passing the computer to do a particular task. Like we are giving some task to find the results. So generally we use our like Turbo C++ and these, that's all our platform, and C++, Eclipse, whatever, these are just the IDE. So we just perform the task, but we do not aware that we are doing competitive programming. So let's discuss. Let's look how programming works.
programming is applied in life. So, we all know that computer executes 10 raised to power 9 instruction per second. Like 1 second, computer executes 10 raised to power 9 instructions. So if we have to execute that manually, like in our real life, we have to execute like we have to fetch the data from a database. So we have to confirm that like what we are going to do and how we will store it. So that will apply a lot. That's a that will apply a logic. That's how we are going to deal with it. So competitive programming, like competitive programming is with few constraints. One constraint of like time and space constraints. We all are aware about time and space constraints. So these are the time and space trade-off. If we are going to deal with competitive programming, so to manage space constraints. So competitive not is general programming. It's a few terms like time and space constraints. Make in competitive programming, the main thing is like an out. Generally, like we cannot apply a external or even single code in our program. Like we cannot do. So we have to add those parts that is needed by a program or code who needs that specific operation. So two more examples of other first example. एक आधार तो अगर हमें पता कि अगर हमसे इंडिया की बात करें तो मतलब अगर मतलब डाटा है सब पास डाटा है तो अगर हमें डाटा चाहिए यहाँ एग्जाम्पल हमें के थ्रू आना है तो हम पहले देखिए अगर हमारे पास जब डाटा होगा तो हम क्या करेंगे कि सभी को फेच करेंगे तो डाटा जब हम इंडिविजुअली फेच करेंगे तो दिस विल टेक अ लीनियर टाइम अगर आपने पढ़ा होगा कि हाँ मतलब कोड का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी यू हैव टू स्टडी इन थर्ड सेमेस्टर इवन फिफ्थ सेमेस्टर ऑल्सो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोई भी कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं तो ये एक मेजर थिंग है लाइक हम स्टार्टिंग से तो करते हैं लेकिन अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होता है कि हाँ मतलब जैसे कि वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैच करना चाहिए या स्पेस हम कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि दैट इज़ एफिशिएंट और नॉट मतलब वो प्रोग्राम जो है एफिशिएंट होना चाहिए कि मतलब हाँ वो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम ले और मतलब एक्स्ट्रा डाटा ना ले क्योंकि पता है हमें कि एक्स्ट्रा डाटा जब भी लगता है तो वो क्या होता है कि मेमोरी वेस्टेज होता है तो हमें एक्स्ट्रा डाटा नहीं चाहिए बट यहाँ पे आप इस स्क्रीन में देख सकते हो कि अगर हमारे पास 10⁻⁹ मतलब इट्स इक्वल टू 1 बिलियन अगर हमें इतना डाटा को फेच करना है तो ये दिस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम मतलब इवन मोर देन 10 ईयर्स तो ये हमारा बहुत टाइम लेने जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वी ऑल नो अबाउट बाइनरी सर्च क्योंकि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है बाइनरी सर्च के बारे में तो हम क्या करते हैं कि बाइनरी सर्च हम अप्लाई करेंगे तो जैसे ही हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं तो बाइनरी सर्च पता ही है कि ये मतलब दो इसमें इंडेक्स पे डिपेंड होता है जैसे कि इंडेक्स पे डिपेंडेंट होता है आप यहाँ पे देख लो ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे हमारे पास जो क्या है कि के साथ हमारे पास जो डाटा है एसोसिएटेड है अब हमें पता नहीं है कि हम सेम और डाटा को कैसे एसोसिएट करें तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हाँ हम डाटा को कैसे एसोसिएट करेंगे और फिर कैसे उससे हम फेच करेंगे और कैसे हम मतलब उसको मतलब अपने नीड्स के अकॉर्डिंग मतलब उसको मतलब मैनेज करेंगे ठीक है तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाँ अब देखिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए एक बेसिक या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कह लें कि वो HTML या फिर जावा में कलेक्शन है या पाइथन में भी होता है तो दैट इज कलेक्शन इन C++ इट इज SCL विदाउट SCL वी कैन नॉट प्रॉपर से कि हाँ
मतलब हम लोग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर किन ने एसटीएल पढ़ा है, एक बार बता दो मुझे कि किन ने एसटीएल पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा बड़ा है। नो वन, चलो ठीक है, ओके ओके, थोड़ा बड़ा आई डिस्कस इट। तो एसटीएल क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है। लाइक हमारे पास पता है कि एरे का बाउंडेशन होता है, और फिर हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ होती है, लाइक बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए हमें 15 to 18 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। लेकिन मतलब एसटीएल के थ्रू हम सिंगल लाइन ऑफ कोड में बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। इवन large number of data, even billions of trillions of data we can apply on that binary search easily। तो उसके लिए हमें मतलब उसके लिए हमें उतना लाइन लिखने का जरूरत नहीं होता है। बट अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो लीनियर सर्च क्या होता है कि हर एक इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू फेच करता है। बट अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें, अगर हमें मतलब डाटा पास करना है, और डाटा जो है ना, अगर हम बात करें एचटीएल के टर्म में, तो एचटीएल में कुछ ऐसे हमारे पास कंटेनर्स है। We all know about containers. Containers like array is a container, stack, queue, these are containers. But there is advanced containers like आपने सुना होगा कि मैप। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी के फ़ोन में फ़ोन बुक तो होगा ना, वो फ़ोन बुक आपको पता है किस पे वर्क करता है? वो फ़ोन बुक मैप डाटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। लाइक मैप डाटा स्ट्रक्चर, जो उसको हम एसोसिएटेड एरे भी कहते हैं, मतलब उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू होता है। और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे हम 3D एरे भी यूज़ कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मल्टी वैल्यूड होता है और एसोसिएटेड एरे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आधार कार्ड और सिम के साथ दोनों एक साथ एसोसिएटेड है, मतलब दोनों एक साथ है। तो ये तो मतलब हम फैच करने के बाद ही हमारे पास अचीव हुआ है। अगर हम फैच नहीं कर पाते, और फैच करने ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना टाइम लेगा। देखिए ये कोई भी अगर टेलीकॉम कंपनी हमें आधार और मतलब डाटा से फैच करने के लिए बोलता है, तो ये एक सिम कार्ड इट हैज़ टू परफॉर्म 10⁻⁹ ऑपरेशन। मतलब एक सिम कार्ड के लिए हमें 10⁻⁹ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हमारे पास मतलब लाइक 10⁻⁹ सिम कार्ड्स है, तो इट हैज़ टू परफॉर्म 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ ऑपरेशन। मतलब हमें इसका डुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और दिस टेक 31.7 ईयर्स। मतलब हमारे पास 31 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। बट अब अगर हम बात करें कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे इम्प्लाइज हो रहा है, तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यहाँ पे ऐसे इम्प्लाइज हो रहा है लाइक कि अब हमें मतलब एचटीएल पता है, हमें कलेक्शन पता है, हम ना उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज़ करके हम उसको मतलब एक छोटे से टाइम स्लॉट्स में उसको रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 31 साल लग रहा है, लेकिन अब हम कुछ इसके ये देखते हैं सॉल्यूशन। वी नीड टू फिगर आउट सम सॉल्यूशन फॉर दिस, क्योंकि हम 31 साल में तो करने तो नहीं जा रहे ना कि हाँ हमें बिलियंस ऑफ पीपल्स का डाटा चाहिए एंड दिस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम लाइक 31.7 ईयर्स। सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव दैट टाइम। सो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग अनदर सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब हम अदर सॉल्यूशन जैसे कि मैं सबसे अच्छा सबसे बेस्ट माना जाता है सर्चिंग एल्गोरिदम है। इवन अभी भी आगे भी है, क्विक सॉर्ट आपको मिलेगा, फिर मर्ज सॉर्ट मिलेगा, बट सबसे बेस्ट मतलब अगर जनरल डाटा पे अप्लाई किया जाए तो बाइनरी सर्च माना जाता है। तो बाइनरी सर्च जो है ना, वी विल बी एबल टू फाइंड इट इन 30 ऑपरेशंस। मतलब अगर हम उतने टाइम में, जो हमारा उतना टाइम लग रहा था, उससे कम टाइम में, मतलब हम 1 सेकंड में 30 ऑपरेशन ऐसा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 सिम कार्ड वी डू 30 ऑपरेशन, ठीक है। तो हम 10⁻⁹ सिम कार्ड वी डू 30 इंटू 10⁻⁹ सिम कार्ड। तो यहाँ पे ये कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है जो आप लोग कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कि ये जो है ना बहुत लंबा टाइम लेने जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कुछ एडवांस टर्म्स है वो यूज़ करते हैं। और इवन अब मैं बताता हूँ कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे यूज़फुल है रियल लाइफ में। तो अब क्या है कि हम मतलब हमारे पास एडवांस टर्म्स होती है जो हमें पढ़ना होता है। तो अब हम मतलब आगे आपको बताएंगे कि हाँ मतलब पैनल कि हाँ आपको कैसे करना है, मतलब वो आगे कैसे आपको इसको मतलब कैरी ऑन करना है कि हाँ आपको अगर कम्पिटिटिव फील्ड में आना है। बट इसका बहुत एडवांटेज है। लाइक हम लोग तो कोड सेट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं,
तो मतलब even I have 1 star मतलब coder on a CodeShop. It's not good, but I'm trying to being a part of CodeShop that will use number of coders. तो क्या होता है कि कोडिंग मतलब क्या है कि मतलब आप कोडिंग करते हो, दैट इज अनदर थिंग. आप कम्पिटिटिव कोडिंग करते हो, दिस विल हेल्प लॉट. क्योंकि आप कोडशेप के वेबसाइट पे जाओ ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वहाँ से डायरेक्ट हायरिंग होती है. और ये कोई गलत बात नहीं है. अगर आप इवन गूगल सर्च कर सकते हो कि हाँ, वहाँ से डायरेक्ट हायरिंग कंपनी हायर्स भी करती है. तो वो बस क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखती है, और हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कोडिंग तो आना ही चाहिए, क्योंकि मतलब प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कोडिंग तो आना चाहिए. तो वो वहाँ पे आपका स्किल्स देखती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि हाँ आप मतलब अगर आपको कोई सिचुएशन दे दिया जा रहा है, लाइक हम अगर मैं आप लोगों को एक फ़ोन बुक इम्प्लीमेंट करने के लिए देता हूँ, लाइक कि फ़ोन बुक में वो मतलब यूज़र का नाम होना चाहिए, यूज़र का नंबर होना चाहिए, और यूज़र का एड्रेस होना चाहिए. तो आप इसको कितने देर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो? लेट्स से हम लोग मैंने आपको टाइम दिया, 30 मिनट्स का टाइम दिया, इवन 45 मिनट्स का टाइम दिया. तो आप उस टाइम कंस्टेंट में इसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट टाइम कंस्टेंट्स इज इंक्लूडेड इन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. वो जो है टाइम कंस्टेंट्स, वही मेन थिंग है. कोडिंग तो कोई भी कर लेगा. अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर लोगे. वो मतलब एकदम श्योर है, डैम श्योर है कि आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर लोगे. बट जो मेन थिंग है ना, वो है कि आप उसका सोल्यूशन तो फाइंड कर लोगे, बट आप इसको मतलब इफिशिएंट बनाओ. मतलब आपने पहले भी पढ़ा है कि हाँ मतलब जो है ना, हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए. टाइम कंज्यूमिंग तो हर कोई होता है, तो प्रोडक्टिव होना चाहिए. लाइक हम अगर 30 मिनट्स यूज़ करके ही कोई भी कोड को इफिशिएंट बना सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब अच्छा बेटर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मतलब वी शुड ट्राई एटलीस्ट वंस कि हाँ मतलब आप लोग को भी आगे आना चाहिए कि हाँ हाउ इट वर्क्स. तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से आपको बहुत कुछ मिलेगा जानने को. मतलब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ से. मतलब आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, जो कोड शेप के बहुत मतलब अच्छे अच्छे कोडर्स है. इवन IITians जो है वो अभी मतलब बहुत अच्छा कर रहा है. तो मतलब अच्छा है कि इवन मैंने 3 महीने से स्टार्ट किया है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है. मतलब 3 महीने से मैंने स्टार्ट किया है. मतलब मैंने बेसिक से स्टार्ट करा था. मैंने पहले लैंग्वेज तो मैंने सीखा हुआ था, लेकिन मुझे भी HTML नहीं आता था. तो पहले मैंने HTML सीखा, और मुझे मतलब जब मैं HTML सीख गया तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत जल्दी हो जा रहा है. तो मतलब दीज आर क्वाइट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स कि हाँ आपको करना चाहिए. तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का यही है, आप कोई भी प्रॉब्लम को मतलब एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हो. ये PPT का भी मतलब यही है कि अगर आप उसको 31 साल में सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी पर्सन अपना 31 साल देने जा रहा है कोई भी इंडस्ट्री को या भी कोई भी कंपनी को. वो मतलब आपको पे कर रहा है फिर, या उसको भी तो मतलब कुछ चाहिए ना कि हाँ रिक्वायरमेंट की होगी कि हाँ टाइम कंस्ट्रेंट्स है. तो वही है. तो अब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अकॉर्डिंग टू मी दो चीज़ जो है ना बहुत मैटर करता है. फर्स्ट थिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी, सेकेंड थिंग स्पेस कम्प्लेक्सिटी. हाँ टाइम एंड स्पेस का ट्रेड ऑफ तो आता है. टाइम मतलब अगर सिटी में जाए तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज सिटी. तो हम सिटी में जाए तो टाइम का कंस्ट्रेंट तो होता है. ये मतलब टाइम और स्पेस का. तीसरा मतलब जो चीज़ है, आप ना आपको जब कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो आप जब उस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी. आपको इस स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और लॉजिक में सूडो कोड में कन्वर्ट करना है. और सूडो कोड में कन्वर्ट करने के बाद आपको प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करना है विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट. तो वो बस यही चीज़ मैटर है. हाँ आप उसको प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि आप अगर HTML करेंगे ना, तो आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का 20% तो सीख ही जाओगे. क्योंकि जो कोड को आपको लिखने में मतलब 15 मिनट या 20 मिनट लगता है, आप उसको 2 मिनट में लिख सकते हो. और कोई भी कंपनी जो है ना आपको पूरा प्रोग्राम कभी इम्प्लीमेंट नहीं करवाती है. वो आपसे बस ये देखती है कि आप कितने कम टाइम में कितने मतलब एडवांटेज चीज़ों को यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर रहे हो. तो ये मैटर करता है कि आप कितने कम टाइम में कर रहे हो. और टाइम तो पता है ना कि टाइम इज़ मोर प्रेशियस देन एवरीथिंग. सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है तो वो टाइम है. तो इसीलिए हम मतलब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे. नाउ इट्स वेरी वंडरफुल टू कैरी on with competitive programming. So next slide will over to you, Jagrup Singh. Thank you. Jagrup Singh. Okay, thank you, Amit. I am audible. Yeah, Okay, you are so audible. okay, Amit, please
Please put the next slide. So today we are discussing about what is competitive programming. So as we all know, programming is a technique to solve a logical and mathematical problem by using any programming language. So competitive programming means, okay, so competitive programming means we are competing with each other by keeping some rules in our mind. That is, what constraints are we using, what types of programming language, is it slow, is it fast, or other things we are using it. So now I will explain in depth that what is competitive programming, why we choose this, and why it is helpful. So competitive programming, so now I will discuss why do competitive programming, कि हमें competitive programming ही क्यों करनी चाहिए और इसका करने का फायदा क्या है. So the very first thing is that जब भी हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं फॉर अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो हम अपने रिज्यूमे में लिखते हैं दैट वी आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्वर. सो राइटिंग इन जस्ट अ रिज्यूमे से लिखने से उसे नहीं पता इंटरव्यूअर को नहीं पता चलेगा कि हाँ हमें सच में लॉजिकल प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आती है. सो इसके लिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स है अवेलेबल है लाइक जहाँ पे हम लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी डू दैट. Yes, Okay, Jagrup. so the next is that it is a way to publicly demonstrate your skill. इससे हम सभी को बता सकते हैं कि yes we have a such type of skill. So the competitive programming platforms are the proof. वो proof है हमारे कि हाँ हम इतने स्टार के कोड शेफ के कोडर्स हैं या कोड फोर्सेस के कोडर्स हैं. So these are the proofs. और कोई भी इसे ये नहीं कह सकता कि ये आपने चीटिंग से किया या किससे, क्योंकि एट दैट प्लेटफॉर्म चीटिंग्स आर नॉट चीटिंग जो है वो नहीं होती. और स्पेशली इन दैट केसेस जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो तब हमें कई सारी स्किल्स को जानने का मौका मिलता है. तो मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि मेक्स यू फास्टर एंड मोर फोकस, कि जैसे कि हम जॉब के लिए जाते हैं किसी बड़ी कंपनी में तो वहाँ पे क्या होते हैं, राउंड्स होते हैं. राउंड्स में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीएस एल्गो के रिगार्डिंग. सो उस क्वेश्चन को हमें विद इन अ लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है. सो अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे कि फर्स्टली हम कंपनी में जा रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें प्रेशर भी होगा, हमें डिफिकल्टी भी आएगी, हम कोड भूल जाएंगे. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कॉमन शो होंगी वहाँ पे. पर अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 1 और 2 ईयर प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें क्या है, हम रहेंगे और हमें पता होगा कि हाँ ये इतने टाइम में कॉन्टेस्ट है, हमें ये करना है. स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी, हाँ ये कॉन्टेस्ट है, ये हो नहीं रहा, बट व्हेन वी ट्राई, जब हम करते करते उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हाँ हम लिमिटेड टाइम में सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारा हैबिट ऑफ writing efficient code means कि code is said to be efficient if it has a less time complexity or it has a less space complexity. Both the condition are not fulfilled because trade off हो जाएगा उन दोनों चीजों में. So mostly जो companies हैं जब mostly competitive programming में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देते हैं कि कोड है उसका कम से कम टाइम हो. अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करोगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, तो इससे आपकी एक रेपुटेशन बढ़ेगी कि आपको स्टार्स मिल रहे हैं, लॉजिकल स्किल्स हैं वो बिल्ट होगी, और उससे आपकी जो राइटिंग ऑफ कोड है वो एक हैबिट बन जाएगी. सो द नेक्स्ट इज गुड सैलरी. हाउ वी गेट अचीव गुड सैलरी, आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट एक कंपनी के लिए वहां पे क्या है कि उसे हाँ उसने प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज आती है, उसने इंटर्नशिप भी किया, उसने प्रोजेक्ट भी किए हैं, बट ऑन द पैरेलली एक और स्टूडेंट जा रहा है, उसने भी ये सब किया, बट प्लस उसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है. तो जब जो इंटरव्यूअर है वो उसी को चूज करेगा जिसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है, क्योंकि उसे पता होगा अगर इसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है और इसके इतने स्टार कोड शेफ कोडर है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत हाई लेवल की है. सो एट दैट पॉइंट इट विल हेल्प. सो नाउ अब स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम कैसे स्टार्ट करें. अमित प्लीज पुट द नेक्स्ट स्लाइड.
हम कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग से सभी स्टूडेंट्स का कोई भी बिगनर का ये क्वेश्चन होता है कि हमें पता तो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, पर स्टार्ट कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जिसे हम अगर फॉलो करें तो हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मास्टर्स भी बन सकते हैं, 6 स्टार 5 स्टार कोड शेफ कोडर्स भी बन सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। इधर इट मे बी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और एनी अदर। बट इफ यू आर गोइंग फॉर, अगर आप किसी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी जॉब को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपको इन चारों में से कोई एक चुननी पड़ेगी, सी प्लस, जावा और पाइथन। पाइथन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पाइथन है कई कंपनीज में नहीं अलाउड और कईयों में अलाउड है, बट सी प्लस प्लस, जावा आर टोटली श्योर दैट दीज आर द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर इंटरव्यूइंग इन एनी कंपनी। अगर आपने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कोई भी अपनी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, पाइथन 2, रूबी, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम कर सकते हो। सो अब जब सभी ने प्रोग्रामिंग चूज कर ली कि हाँ मैंने इस प्रोग्रामिंग में जाना है, सो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें प्लेटफॉर्म चूज करना। सो प्रैक्टिस करने के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इंटरव्यू बिट, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसे चूज कैसे करें? सो सबसे पहले एटलीस्ट 2 पे कंसिस्टेंसी रखो और डिसिप्लिन रहो कि आपने इस 2 प्लेटफॉर्म को अच्छे से करना ही करना है और रेगुलरली करना है। उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 और 2 प्लेटफॉर्म को आप चूज करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में आप 5, 6 या 7, 8 चूज करोगे, सो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज आप सबको नहीं होगे और आगे बाद में डिफिकल्ट एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। एज वी आर ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इन द बिहाफ ऑफ कोड शेफ, सो कोड शेफ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज दैट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट अब अपने प्लेटफॉर्म भी चूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स तो पता चल गए। अब नेक्स्ट है डीएस एल्गो, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग 85% से जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो डीएस एल्गो के बिहाफ पे ही है। अगर आप डीएस एल्गो छोड़ दोगे तो आप ये समझो कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डीएस एल्गो ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो और इससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है डेवलप होगी। तो डीएस एल्गो इज मस्ट टू लर्न। So after that, the next step is that the next step is that try if you are for example आप फर्स्ट टाइम पे आप अटेम्प्ट करिए, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपकी एरर्स आई जा रही है और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, सो इट्स ओके। एट द बिगनिंग किसी न्यू प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो बट व्हेन इट मेक अ हैबिट, जब आपकी ये आदत बन जाएगी, इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, इवन इट टेक 1 मंथ, 1 मंथ भी लग सकता है। जब आपकी ये हैबिट बन गई कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छा ऐसे करनी है, तो आपको बाद में डिफिकल्ट नहीं होगा। और इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उतनी ज़्यादा आपको आएगी जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसका एक ही रूल है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मास्टर होना वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द नेक्स्ट इज, अब मान लो कि ऐसा स्टूडेंट है जिसने कह दिया कि हाँ मैं अभी सभी जो है प्रोसीजर वो कर लिया है, प्रैक्टिस भी काफ़ी हो गई है, मैं 4 स्टार 5 स्टेप कोड शेफ कोडर हूँ, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप इज कम्पीट इन कॉन्टेस्ट। सो कॉन्टेस्ट हर किसी जो प्लेटफॉर्म है कोडिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, वहाँ पे कॉन्टेस्ट जरूर होते हैं। कॉन्टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हम कितने की हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती है, कितने टाइम पे हम कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन, और इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज दैट आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे, सो दैट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर भी आ सकती है उस जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए। द सेकेंड स्टेप इज दैट आपको गुडीज और मनी प्राइजेस भी मिल सकते हैं अगर आप इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। सो आफ्टर दैट योर ऑल द प्रोसेसेस आर completed and you will get your success. Okay, thank you. So now
आई डिस्कस द बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द वेरी फर्स्ट इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ स्टैंडर्ड ही समझते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज वेरी फास्टर एक्सिक्यूशन प्रोग्रामिंग वेरी फास्टर. इसमें एक STI स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी करके एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है जो एक 20-25 लाइंस ऑफ कोड को 5 और 6 लाइंस ऑफ कोड में कन्वर्ट करती है. कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है. सो ये मोस्ट प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग ओवर द वर्ल्ड. सो कैन यू पुट द नेक्स्ट स्लाइड? Okay, Java. So now Java is also used in competitive programming. अब सभी ये सोच रहे होंगे कि जो Python प्रोग्रामिंग जो प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड मानते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो ऐसा क्यों है कि जावा क्यों यूज करते हैं? सो इस पे एक रीजन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कंपनी में जाना है जहाँ पे जो लैंग्वेज प्रेफर्ड है वो है जावा. सो एट दैट पॉइंट आप क्या कर सकते हो, जावा चूज करोगे जिससे आपकी जो कंपनी के प्रिपरेशन है, कोई भी आपको फ्रेमवर्क सीखते हैं, स्प्रिंग बूट सीखना है, कोई भी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू जावा, एंड्रॉइड और अदर भी काफी सारे. ओके, आफ्टर जावा. सो पाइथन इज आल्सो यूज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पाइथन भी यूज होती है बट इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये सी प्लस प्लस जावा से बहुत ज़्यादा ही स्लो इसलिए है क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इंटरप्रेटेड में लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा कंपाइल नहीं होगा. इससे ये डिफिकल्टी आ सकती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कि टाइम की इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है. आल्सो इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, सो उसमें क्या होता है, पाइथन इज नॉट प्रेफर्ड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें क्या है कि एज इट इज़ अ स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, सो ये उसे चूज ही नहीं करते. सो बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अगर आपको किसी कंपनी लाइक आपको अमेजन में जाना है तो वहाँ पे आपको फर्स्टली डिस्क्राइब करना ईमेल पे सेंड करना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू गिव इंटरव्यू इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी सी प्लस प्लस जावा की. पर आपको अगर पाइथन में करनी है, आप उसको बताना पड़ेगा इंटरव्यू को कि मैं पाइथन में कंफर्टेबल, सो आई विल गो विद द पाइथन. सो पाइथन इज आल्सो यूज्ड. Amit, can you put the next slide? So as I already told that various platforms are used in competitive programming. So the top platforms we have listed there, that is CodeChef, CodeForces, TopCoder, Spots.com, Geeks4Geeks.com. So next slide, please. So now let's get started with the CodeChef, as we are organizing this event with the behalf of CodeChef. So now I will discuss that what is CodeChef, then how we create an account, how the problems are seen on that platform. यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, यू कैन चूज Gmail, you can choose GitHub, Facebook, as well as you. After that there is an example. The example as shown, we have input 2. So after that input 2, okay, so we have input 3. So when we put the input 3, so उसके बाद 3 inputs हमें provide करने पड़ेगी. So 3 input provide किए हैं, output में हमें उसका sum provide किया गया जिसकी हमने input की है. So जो next step में आता है कि कितना हमें time limit होना चाहिए और source limit means कितने bytes वो occupy कर पाए. So यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, वो है author means कि जिसने ये कोड पब्लिश किया है, और जो कोडर है वो भी एक ऑथर बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप 5 स्टार या 6 स्टार CodeChef कोडर हो, सो एट दैट पॉइंट यू कैन रिक्वेस्ट टू द CodeChef दैट यू वांट टू बिकम अ author. So at that point you will publish your problems, and for these problem you will get the money. So it's also good source for income. So next slide please. Okay, thank you. So now outcome of submission, it means कि जब हम सबमिट करते हैं जो कॉमन एरर्स आती है, जब कॉमन जो
हमें सीन होते हैं वो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट इज कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर मीन्स व्हेन वी आर राइटिंग अ कोड, जब हम कोई कोड लिख रहे हैं तब उसमें कोई भी एरर हो गई, लाइक आपने सेमीकोलन लगाना भूल गए, अब ब्रैकेट लगाना भूल गए, सो दिस इज नोन एज कंपाइलेशन एरर। जो जब आप कोड राइट करोगे तब आपको वहीं पे सीन शो हो जाएगा कि हाँ आपकी इस चीज़ में गलती है। सो नेक्स्ट इज टाइम लिमिट एक्सीड। टाइम लिमिट एक्सीड मीन्स यू हैव सोल्व द क्वेश्चन। ओके, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको समझ भी आ गया, बट जब आप रन किया तो आपको दिखा कि टाइम लिमिट है एक्सीड हो गया। मीन्स अगर आपको इतने टाइम में करना है तो आपको टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आपको नेक्स्ट और अप्रोच लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज मेमोरी लिमिट एक्सीड, सेम एज टाइम लिमिट एक्सीड। इसमें क्या होगा, अगर मेमोरी हमें गिवन है, अगर हमने उससे ज़्यादा मेमोरी को यूज़ किया, सो इट मे कॉज problem, it may cause such type of message that memory limit exceeded, so you have to correct your program. So next is runtime error. Runtime error is occurred when we are running your program, and at that point it will show the errors that this type of errors have occurred. Next is wrong answer. Wrong answer means you have write the code but your answer is occurred in the wrong format. So next is accepted. Accepted means your program is accepted. अब प्रोग्राम एक्सेप्ट होने के लिए केसेस होते हैं, उस केसेस को कहते हैं कॉर्नर केसेस। सो कॉर्नर केसेस को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइक सभी को पता है कि अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का एक प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे एक्स। एक्स को हमने अगर ग्रेटर देन 1 मान लिया तो इट्स पॉजिटिव, एक्स को अगर लेस देन 1 मान लिया तो इट्स नेगेटिव। बट इसमें एक कॉर्नर केसेस ये भी है कि इफ x इज इक्वल टू 0, सो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम ये इंक्लूड नहीं करते कि अगर x 0 होगा, क्योंकि 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। सो एट दैट पॉइंट इट इज अ कॉर्नर केसेस। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हमें कॉर्नर केसेस भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। सो कैन यू पुट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Okay, so that's all from my side. Now we will implement the example. Now, Amit, over to you. Thank you. थैंक यू जग्गू। चलिए अब हम देखते हैं कि एक कोर्से पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होता है, और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मेरी स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रही है ना? Yes, Amit, it's presenting. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ज़्यादातर लोग को पता होगा, वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर जिनका अकाउंट है पहले से तो डायरेक्ट यहाँ यूजर नेम डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो न्यू यूजर में जाके अपना यूजर नेम जो रखना चाहते हैं वो यूजर नेम के लिए क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ फुलफिल होना चाहिए। नेम, ईमेल, पासवर्ड बाकी डाल के इनको रजिस्टर करना है। ऐसे मेरा अकाउंट है तो मुझे जरूरत नहीं है रजिस्टर करने की, मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। तो हम पहुँच गए हैं कोर्सेप के लैंडिंग पेज पे। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे एंड में ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके आ रहा होगा। वहाँ पे कहाँ पहुँच गया है सर हम लोग? हेलो, Yes sir, am I audible sir? हाँ संजय बोलो। Is your voice clear? My voice clear? हाँ बोलो यार। सबसे पहले हम लोग को कोर्सेप पर लॉगिन करना है। देखो कोर्सेप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब उसके बाद हम लोग इजी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिए। अब हमको देखना है कि अगर जैसे हम बिगनर हैं तो सबसे पहले हमको वैसा क्वेश्चन टच करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बार स्टूडेंट जो है वो सबमिट कर चुके हैं। तो सबसे पहले सक्सेसफुल सबमिशन यहाँ आ रहा होगा, इसको एक बार क्लिक कर देंगे। ये देखिए करीब 1,21,617 स्टूडेंट्स ने इसे कंप्लीट कर चुका है। मतलब ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा। तो इसको क्लिक करते हैं। इस क्वेश्चन का लिंक भी मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और ये पहला क्वेश्चन है, योर प्रोग्राम इज टू यूज ब्रूट फोर्स अप्रोच इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर टू लाइव यूनिवर्स एवरीथिंग। ये लाइव यूनिवर्स एवरीथिंग ये क्वेश्चन टारगेट कर रहा है। मोर प्रिसाइजली, rewrite small numbers from input to output. Stop processing input after reading in the number 42. All the numbers are integers of 1 or 2 digits. यह क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है कि स्टॉप प्रोसेसिंग इनपुट आफ्टर रीडिंग द नंबर 42। मतलब हम लोग को स्टार्टिंग से नंबर इनपुट करना है और जब भी 42 आ जाए तो वहां पर हम लोग को स्टॉप करना है। ठीक है, all numbers at input are integers of 1 or 2 digits. सर आवाज नहीं आ रही है सर, your voice is not clear sir.
ओके, तो हम लोग को नंबर चाहिए, मतलब एरे में एक नंबर जाएगा स्टार्टिंग से, और हम लोग रुकना वहाँ पे है जहाँ पर जब भी 42 आ जाए तो हम लोग वहाँ स्टॉप हो जाना। इससे ज़्यादा हम लोग को नंबर प्रिंट नहीं कराना। जैसे कि सैम्पल इनपुट हम लोग देखते हैं कि अगर 1, 2, 88, 42, 99 ये नंबर से हम इनपुट किए, ठीक है, और इसमें आउटपुट आ रहा है 1 to 88। जैसे कि 1 डाले 1 प्रिंट हो जाना चाहिए, 2 डाले 2 भी प्रिंट हो जाना चाहिए, 88 डाले तो 88 प्रिंट हो जाने, लेकिन जहाँ 42 आया हम लोग यहाँ रुक जाना, 42 भी प्रिंट नहीं करना, बस यहीं तक प्रिंट करना। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं तो सबमिट का बटन है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी में इंक्लूड करते हैं। एक्सटेंडर यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिफाइन करते हैं, मेन फंक्शन जो करते हैं। सबसे पहले एक एरे लेते हैं int f नाम का, तो साइज पहले डिक्लेयर कर देते हैं 400। ये बताएं कि हम लोग f जो लिए वो 100 ही लिए, इसे मैक्स नहीं लिए, क्योंकि इसमें पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें पहले डिक्लेयर कर चुका है कि जो इनपुट होगा वो 2 डिजिट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एरे जो डिफाइन कर रहे हैं वो करते हैं मैक्स टू मैक्स 100 कर रहे हैं। वाइल लूप लेते हैं, ये यूज करेंगे हम लोग वो एरे में नंबर इनपुट लेने के लिए। अब ये जो लूप है मेरा, इसमें एरे में नंबर इनपुट होगा। ओके, देन प्रॉफिट साइन को 0 करते हैं। अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, जैसे जो कि मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है। पहले पूरा लूप एक्सेस ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला कंडीशन ये था कि हमको 40 जब भी 42 आएगा तो वहाँ पर रुक जाना। तो सबसे पहले इसी पे काम करते हैं। इसके f का i, फिर मेरा 42 हुआ तो हमको वहीं पर ब्रेक पे जाना, रुक जाना। हो गया ब्रेक। नहीं तो अब एल्स में अगर 42 नहीं हुआ तब तो उसको प्रिंट कर देना है। तो सी आउट f का i, ये न्यू लाइन के लिए स्लैश n, और एरे में आगे मूव करने के लिए i प्लस प्लस। लास्ट में रिटर्न 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट मेन लिए हैं तो रिटर्न 0 करना होगा। और ये प्रोग्राम था, काफ़ी आसान प्रोग्राम है, जिससे कि हमने देखा बेसिक प्रोग्राम था। इसको करते हैं सबमिट, सक्सेसफुल होता है। जी, करेक्ट आंसर आ गया, टाइम 0 सेकेंड, और हमारा जो प्रॉब्लम था ये सबमिट हो चुका है। ओके मोहित, माइक इज योर्स। Thank you, Amit. I would say, wow, it was an amazing session. And thank you, Amit Gupta. Thank you, Amit Kumar. And thank you, Jagrup Singh. You explained every part which is associated with it. Let me give a brief introduction about ESC, that is Engineering Society Circle. It was launched on 15th October 2019. That is exactly 1 year ago. Till it was only one interdisciplinary engineering society in GGI. The motive was to build the culture of engineering and technology in our campus, and I am happy to share that it it showed its potential in every events, webinars, and also started two departmental clubs, that is competitive programming club, which we are discussing today, and second is Python project club. I am sharing a feedback plus survey link with you all,
and certificates should be provided after that. That's mean we are also surveying the students those are already working in the competitive programming and the platform which they are using, and those are not started can register themselves to CodeChef and any other platform, and also share if you are interested in our competitive programming club. For that you have have to show the screenshot of any platforms which you are working and share with us at arcaneinnovation@ggi.ac.in. So that is it for today, guys. If anybody wants to share something with us, you may do it, and I am sharing the link in the chat box. You can register through the link, and you have to make an account of CodeChef and user ID name feed at there. So thank you, guys, and I request Deepika ma'am to vote of thanks. Deepika ma'am, are you there? If anybody else wants to say something, you may do it. Am I audible? Yes, yes. You are audible. Okay, thank you, Amit. So we should conclude the session. Thank you for joining, guys. It was a wonderful session. I would say, wow, Amit Gupta, you presented well. Amit Kumar, you also presented well and explained everything. And Jagrup Singh, thank you so much. And thank you, guys, joining. And please fill this form and survey, and your certificates will be provided through your college Gmail IDs. Thank you, guys. Link in case if you want any query, any problem, if you want to join our Python project club or competitive programming club, you may contact us at this email ID. I'm sharing with you. Amit said a wrong email ID. Thank you, guys.